और अब तफसील इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने कलीदी फैसला दिया है। 5 रुकनी दस्तूरी बेंच ने इत्तेफाक़ी राय से फैसला सादिर किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मुरतकब है। कोर्ट ने कहा कि काले धन पर काबू पाने का वाहिद रास्ता इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं है, इसके लिए दूसरे रास्ते भी मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा कि इस तरह चंदा देने का अमल क्विड प्रो को की राह हमवार कर सकता है। कोर्ट ने हिदायत दी कि जिन पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा व अतियाजात हासिल किए हैं वो अतिया दहिंदगान को वापस कर दें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की क़ियादत में 5 रुकनी दस्तूरी बेंच ने ये फैसला दिया है। याद रहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को चैलेंज करते हुए ADR, CPM और कांग्रेस कायदीन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सियासी पार्टियों को खुफिया तौर पर चंदा देना बदउनवानी के तहत आता है। Bank shall herewith stop the issuance of electoral bonds. B. State Bank of India shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date to the Election Commission of India. The details shall include the date of purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchased. C. State Bank of India shall submit the details of political parties which have received contributions through electoral bonds since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date to the Election Commission of India. SBI must disclose details of each electoral bond encashed by political parties, which shall include the date of encashment and the denomination of the electoral bond. D. SBI shall submit the above information to the ECI within 3 weeks from the date of this judgment, that is by 6 March 2024. E. The ECI shall publish the information shared by the SBI on its official website within 1 week of the receipt of the information, that is by 13 March 2024. The Supreme Court has struck down the electoral bond scheme, comprehensively struck it down, and all the provisions that were made to bring it into effect in the Income Tax Act, in the Companies Act, etc., everything has been struck down. They have held that this violates the fundamental right to information of citizens to know about who is contributing this much money to political parties, etc. They have also struck down the amendment made which allowed unlimited political contribution being made by companies to political parties. So, not only the electoral bond scheme but also the amendment which removed the restrictions on political contributions by companies, which were that you cannot contribute more than 7.5% of your annual profit by way of political contributions. That has also been struck down as violating the level playing field in a democracy. So the petitions filed by us have been comprehensively allowed by the Supreme Court. इलेक्टोरल बॉन्ड से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में राहुल गांधी ने वजीर आजम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स मोदी हुकूमत की बदउनवान पॉलिसियों की एक और मिसाल है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कमीशन और रिश्वत के लिए ही इस स्कीम को मुतारिफ कराया गया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतालिक कैग की रिपोर्ट को हुकूमत ने ऐवान में पेश किया। प्रोजेक्ट की लागत को DPR में 63,352 करोड़ रुपए दिखाकर 1,06,000 करोड़ का तखमीना बढ़ा दिया गया। मौजूदा तामीरात 14 लाख एकड़ अराजी पर मुहित हैं। कैग रिपोर्ट ने वाज़ेह किया कि प्रोजेक्ट की तकमील तक 1,47,427 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मजलिस के कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के मसाइल को ऐवान में उठाया। उन्होंने यहाँ पर मकानात की बाकायदगी और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तरक्याती कामों में रुकावट पैदा करने की शिकायत की। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि इन दोनों मसाइल को जल्द हल किया जाए। आप देखिए मेरे हल्के के अंदर जो भी मोहम्मदी लैन या हकीमपेट या लखनौरा लक्ष्मीनगर रामदेवगढ़ा इस इलाके के अंदर जो स्लम इलाके हैं वहाँ पर आर्मी वाले आकर कहीं छोटे छोटे मेंटेनेंस का काम या कुछ भी काम करते हैं तो आकर रुकावट बना कर रहे हैं और उनके ऊपर पुलिस केसेस हो रहे हैं।
मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि जियो नंबर 118 को जल्द से जल्द रेगुलराइज करने के लिए ज़रूरी है। और दूसरा एक इशू है स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरे हल्के कारवान के अंदर आप देखिए जो GHMC के और वाट टावर्स की जानिब से जो बड़े बड़े काम चल रहे हैं, वहाँ पर ये ट्रैफिक की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कई ऐसे रुकावटें पैदा करते जा रहे हैं, कई टैंकर्स को, टिप्पर्स को, मशीनरी को रोक दिया जा रहा है। उसकी वजह से मुझको बहुत काम का आवाम को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। स्पीकर शुक्रिया। चारमीनार MLA जुल्फ़िकार अली ने निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की हालत इज़ार का जिक्र किया। उन्होंने अस्पताल की इमारत की मरम्मत और तज़ीन के अलावा गर्ल्स हॉस्टल में दरकार सहूलियात की फराहमी का हुकूमत से मुतालबा किया है। ये बड़ी अफसोस के साथ और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि एक ही यूनानी हॉस्पिटल तेलंगाना में है, एक ही कॉलेज तेलंगाना में यूनानी बचा हुआ है, लेकिन उसको कोई तवज्जो उसकी तरफ नहीं दी जा रही है। मैं आपके ज़रिए से यही कहूँगा कि मैं CM साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार CM साहब वहाँ का दौरा करें और हेल्थ मिनिस्टर साहब भी वहाँ का दौरा करें, ताकि उनको ये पता चल जाए कि जो हेरिटेज बिल्डिंग जो निज़ाम ने बनाई है, इतनी शानदार बिल्डिंग की क्या हालत हम कर सके हैं। आज हुकूमत उसका मेंटेनेंस नहीं कर सकती। बिल्डिंग बनाना तो दूर की बात है, उसका मेंटेनेंस हम नहीं कर सकते। तो मैं आपके ज़रिए से यही कहूँगा कि आप यहाँ पर ये कहिए कि आप एक ऑर्डर पास कीजिए कि उसको जल्द से जल्द उसका टेंडर किया जाए और कामों को शुरू कर दिया जाए। और एक दूसरी बात ये है कि बशीर बाग, नाना बाग की मस्जिद है, औकाफी जायदाद है, 16 एकड़ का गज़ट है उसके ऊपर, लेकिन तमाम जायदाद पर इंक्रोच कर लिया गया है और वहाँ पर GHMC उसको परमिशन बार बार देते जा रही है। कई बिल्डिंग्स बन गए हैं। ये सोचना चाहिए GHMC को बार बार तवज्जो भी दिलाया गया कि इसको परमिशन मत दीजिए, क्योंकि ये औकाफी जायदाद है जिसकी ऑलरेडी गज़ट पब्लिश है। तो उसके लिए भी मैं तवज्जो दिलाता हूँ आपसे कि GHMC को ये कहा जाए कि जितने परमिशन वहाँ पे दिए गए हैं उसको कैंसिल किया जाए और उस पर इंक्वायरी बिठाया जाए कि परमिशन आखिर किस तरीके से दिया गया। मैं यही आपसे कहूँगा। शुक्रिया। वहीं नामपल्ली MLA माजिद हुसैन ने हल्के में मौजूद 4 सरकारी अस्पतालों में दरकार सहूलियात फराहम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नीलोफर अस्पताल में MRI मशीन की सख्त ज़रूरत है, वहीं दीगर अस्पतालों में भी दरकार मशीनें और तिब्बी आलात की कमी को पूरा करने का मुतालबा किया। वहाँ पे 4 बड़े अस्पताल हैं, जैसा कि नीलोफर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली और उसी के साथ सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल। अगर आप इन 4 सरकारी इदारों को देखेंगे तो इन 4 सरकारी इदारों में हर रोज़ करीबन 10,000 से ज़ायद गरीब लोग यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं और इन 4 इदारों को और मजबूत करना मेरे साथ आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हर एक ये चारों इदारों में मेंटेनेंस की सख्त ज़रूरत है। नीलोफर हॉस्पिटल में ख़ास तौर से 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर की बेइंतहा ज़रूरत है। वैसे ही नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में हर एक इदारे में कई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट के पास एक डिटेल प्लान है। MNJ कैंसर हॉस्पिटल है और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में ख़ास तौर से एक आउटपोस्ट और वहाँ के सिक्योरिटी को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। तेलंगाना असेंबली में स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने अहम ऐलान किया। उन्होंने ऐवान में कहा कि जब ऐवान की कार्रवाई जारी रहेगी तब MLAs के लिए मीडिया पॉइंट दस्तयाब नहीं रहेगा, लेकिन जब ऐवान की कार्रवाई नहीं होगी तब अराकीन मीडिया पॉइंट पर बात कर सकते हैं, चाहे वो टी ब्रेक हो या लंच ब्रेक हो या फिर कार्रवाई मुलतवी होने की सूरत में। उन्होंने मजीद कहा कि बिना इजाजत के ऐवान में सेल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल न करें। I am to announce to the House that honorable members are advised not to use the media point provided in the precedents of the assembly while the assembly session is going on. Honorable members may use media point during the tea break, lunch break of the house or adjournment of the house for the day. नए कवायद लगाकर हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ को दबाना चाहती है। BRS MLA
कड़ियम श्रीहरि ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें ऐवान में बात करने का मौका दिया जा रहा है और ना ही मीडिया पॉइंट पर बात करने दिया जा रहा है। అసెంబ్లీలో మాట్లాడే అవకాశం రావడం లేదు. కనీసం బయటికి వెళ్ళి మా పార్టీ తరఫున వివరణ ఇచ్చుకుందామనుకుంటే ప్రజలకు వాస్తవాలేంటో తెలియజేద్దామని కొని మీడియా పాయింట్కి వెళ్తే మీడియా పాయింట్ దగ్గరికి పోలీసులు వెళ్ళనీయలేదు. గత 10 సంవత్సరాలలో ఒకవైపు అసెంబ్లీ నడుస్తూ ఉన్న మీడియా పాయింట్ దగ్గర ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళి మాట్లాడేది, మంత్రులు వెళ్ళి మాట్లాడేది. కానీ ఈరోజు అసెంబ్లీ నడుస్తున్నది మీడియా పాయింట్ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళడానికి వీలు లేదు అని చెప్పి మమ్మల్ని అడ్డుకోవడం జరిగింది. విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఇంత దారుణమైన అప్రజాస్వామిక పద్ధతులు ఎన్నడూ చూడలేదు. అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కడికైనా ఆ ఆవరణలో వెళ్ళటానికి తిరగటానికి అవకాశం ఉంది. ఇవాళ ఎమ్మెల్యేలనే తిరగనీయకుండా అడ్డుకునే పరిస్థితి, దానికి కూడా బ్యారికేడ్స్. ఎట్లయితే మీరు అసెంబ్లీకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు రోడ్డు మీద కంచెలు ఎట్లాగైతే పెట్టారో అదే పద్ధతిలో అసెంబ్లీ లోపల కూడా మీడియా పాయింట్కి పోకుండా కంచెలు పెట్టారు. कृष्णा के पानी के लिए राज्यसभा में आवाज उठाने का टीआरएस के राज्यसभा उम्मीदवार वडीराजू रविचंद्र ने अज़्म जाहिर किया। उन्होंने बीसी तबके से उन्हें दोबारा मौका देने पर केसीआर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत में बीआरएस हुकूमत के इक़्तिदार लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वादे पूरा करने तक कांग्रेस पर दबाव बनाए रखने का रविचंद्र ने ऐलान किया। ఇంత మంచి అవకాశం కల్పించినటువంటి కేసీఆర్ గారిని మరొక్కసారి త్వరలో కష్టపడి అందరం పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చి కేసీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చేసే ప్రయత్నమే మేమందరం కష్టపడాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ఇంకా ఏంటంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటిది నీళ్ళ గురించి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు మొన్న నల్గొండలో బ్రహ్మాండమైన సభ పెట్టారు. ప్రజలకు అర్థమయ్యే విధంగా వివరించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నారో అవన్నీ పాయింట్ టు పాయింట్ విపులీకరించి చెప్పారు. అవన్నీ ప్రజలకు ఎక్కింది. అది ఖచ్చితంగా బ్రిజేష్ ట్రిబ్యునల్ కమిటీ ద్వారా ఈ 6 నెలల్లోనే తొందరగా అది సాధించుకొని నీళ్ళ వాటాను, కృష్ణా జలాలను వాటాలను పరిరక్షించుకోవడానికి అందరం కూడా రాజ్యసభలో పార్లమెంట్లో మా మిత్రులందరూ రామనాగేశ్వరరావు గారు కానీ ఎవరున్నా సరే పార్లమెంట్ సభ్యులందరం కూడా రాజ్యసభ నుంచి కేశవరావు గారు కానీ సురేష్ రెడ్డి గారు కానీ మా మిగతా వాళ్ళందరం కూడా కష్టపడి మా వాటాను తెలంగాణ నీళ్ళను కాపాడుకునే విధంగా ఖచ్చితంగా పోరాటం సాగిస్తాం. ఈ రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నీళ్ళ వాటా అయినా కానీ నిధులైనా సరే ఏదైనా సరే కాజీపేట రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ రావాలి, ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి కోచ్ ఫ్యాక్టరీ రావాలి. మళ్ళీ కేసీఆర్ గారిని బీఆర్ఎస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చేదాకా మేమందరం కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు ప్రతి కార్యకర్త ఫైట్ చేసి మళ్ళీ అధికారంలోకి తెచ్చుకుంటాం. सीधे रुख करेंगे गुंटूर का, जहां पर इस वक्त वायस जगनमोहन रेड्डी पहुंच चुके हैं।